Assalamualaikum to all of my students. How are you? I hope you are all fine. Now chapter number 4 has been completed. Now MCQs and numericals of this chapter is now MCQs of chapter number 4 are: number 1, the quantity of motion contained in a body is called its momentum. Okay. The SI unit of force is Newton. Number 3, mass can be measured by physical balance. Number 4, rolling friction is always less than sliding friction. Number 5, sliding friction is greater because the area of contact is greater. Number 6, Newton's second law of motion helps us in the measurement of mass. The force acting along a string is called tension. Number 8, the quantity of matter in a body is called its mass. The product of mass and velocity is called momentum. The maximum force of friction which just stops the body from moving is called limiting friction. Number 11, the law of conservation of momentum states that the momentum of an isolated system is always remain constant. Number 12, the resisting force between two surfaces before the motion means start is called static friction. Number 13, the friction during motion is called kinetic friction. The force with which the earth attracts a body towards its center is called weight. Number 15, when an unbalanced force acts upon a body, it produces acceleration. It is that characteristic of a body due to which it resists against any change in its states is called inertia. 17. Motion cannot be produced in a body without force. Now numerical of these chapters are: numerical number 1, that is 4.1, is determine the acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. Means आपकी एक कार है जिसका मास आपको 900 किलोग्राम दे रखा है, नेट फोर्स उसकी डिफाइन की गई है 2700 न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ अ फोर्स. आपने डिटरमाइन क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ अ कार. Now the solution is, first of all, data. Mass of a car is equals to m equals to 900 kg. Applied force is equals to F equals to 2700 Newton. Acceleration of a body is question mark, that is you can determine by the formula Newton first law of motion is equals to F equals to ma. हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसलिए हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ वैल्यूज पुट करेंगे. जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4.2, दैट इज a car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniform brought to rest over a distance of 40 मीटर. फाइंड ए है, इसमें दो पार्ट्स आपको गिवन है. ए में आपको क्या मालूम करना है? एवरेज एक्सेलरेशन. और दूसरे में आपको मालूम करना है एवरेज ब्रेकिंग फोर्स. अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आपके पास जो एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो भी एवरेज में होगी. अब आपको ये देखना है कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है. मींस आपके पास जो वेलोसिटी एवरेज में आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी,
जिस फॉर्मूले में इनिशियल और फाइनल दोनों का तस्करा होगा वेलोसिटी की रिस्पेक्ट से, वो वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि आपके पास जो कार का मास है वो 1000 किलोग्राम है, ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मींस आपकी ये क्या दे रखी है उसने, वेलोसिटी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी वेलोसिटी, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर। मींस आपकी एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस उसने क्या दे रखा है 40 मीटर। फाइंड उसने करने को कहा है इसीलिए कि एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ द 4.2 इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा दैट इज mass of a car is equals to 1000 kg, initial velocity is equals to vi is equals to 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को किस तरह सेकंड्स में करेंगे। करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो vi इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड बनेगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी दैट इज vf इक्वल्स टू 0.5 मीटर। अच्छा, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, s इक्वल्स टू 40, कितना दिया हुआ था 40। मालूम करने को कह रहा है वो एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद आपको क्या मालूम करने के लिए कह रहा है, ब्रेकिंग फोर्स। मतलब जब चलते हुए उसने फोर्स अप्लाई करी ब्रेकिंग के लिए, ब्रेक मारने के लिए, तो उसकी फोर्स बताने की क्या है। अब आप आ जाइए इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपने सारी वैल्यूज पुट करी। vf हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी जब वो कार आके रुक गई। ठीक है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी 0। 2 एज इट इज, a की वैल्यू हमने मालूम करनी है, s हमारे पास 40 है, vf हमारे पास 0, vi हमारे पास 20। जिस पे स्क्वायर करना है उस पे स्क्वायर करेंगे, जिसको मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 80, a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 20 का स्क्वायर तो 400। नाउ a को हमने एक तरफ रखा, बाकी 80 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो डिवीजन में आएगा। a इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकला, माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आप एक बात सुन लीजिए कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब हमारे पास मूविंग कार थी। ठीक है, मूविंग कार का मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी थी वो 72 थी, और जब उसने ब्रेक लगाए और हमारी बॉडी स्टॉप हुई तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, इसीलिए अगर स्टार्टिंग से चलती हुई गाड़ी अगर रुक जाए तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा vi ही होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर वो रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0। अगर रुकने से चीज चलने पे आएगी तो जब रुकी हुई चीज होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी जो गिवन होगी वो उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ कार का जो सिलसिला था वो चलते हुए में से रुका था, तो चलने वाली जो पोजीशन थी वो इनिशियल थी और रुकने वाली जो पोजीशन है वो फाइनल है। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4.3, a bullet of mass 50 gram traveling with the speed of 15 meter per second square penetrate into a bag and sand and is uniformly bag brought to rest in 0.05 second. Find क्या करना है आपने, how for the bullet will penetrate into the bag and sand, the average force exerted by a sand, that is the second part. आपने इसमें भी 2 पार्ट मालूम करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, एक बुलेट है जो 50 ग्राम की है और ट्रेवल करती हुई आ रही है 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और पेनिट्रेट करा उसने अपने जो रेत का थैला उसके अंदर। ठीक है, और जो यूनिफॉर्मली ब्रॉड एट रेस्ट आई है उसकी जो टाइम टेकिंग दिया उसने वो 0.05 सेकेंड है। आपने क्या मालूम करना है कि उसका जो पेनिट्रेशन का जो वक्त था वो आपने मालूम करना है, और एवरेज फोर्स जो उसके ऊपर हम एक्सर्ट कर रहे हैं बाय सैंड, ठीक है, उसको मालूम करना है आपने। नाउ डेटा से आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि मैं किस तरीके से बात बताना चाह रही हूँ। डेटा इज मास ऑफ अ बुलेट इज m इक्वल्स टू 50 ग्राम। ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, केजी में।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैंड की बात हो रही है, सैंड जो उसका पार्ट है ये आपने खुद डिसाइड करना होगा कि आया हमें किलोमीटर से मीटर में कब कन्वर्ट करना है और ग्राम से किलोग्राम में कब कन्वर्ट करना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या करा, 50 को डिवाइड किया 1000 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.05 kg थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी VF इक्वल टू 0। बुलेट पुशअप कब हुई थी, 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या बनी, 0। टाइम टेकिंग जो उसने लिया है 0.05 सेकेंड का। ठीक है, सैंड में घुसने के लिए, मतलब सैंड वाला जो बैग था उसके अंदर पेनिट्रेट करने का टाइम क्या गिवन था, 0.05 सेकेंड। और डिस्टेंस जो कवर किया है वो हमने बताना है, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया आपका A पार्ट, और B पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, फोर्स। सेम वही एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, VF माइनस VI ओवर T एक्सेलरेशन, बाकी सारी चीजें पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा A इक्वल टू माइनस का 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने मालूम करना है न्यूटन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी गिवन है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और टाइम भी गिवन है। अब हम इन सारी चीजों को किस में पुट कर सकते हैं, अपनी S वाली वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपने ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करी, 15 इंटू 0.05 टाइम है ये, प्लस हाफ एज इट इज। A की वैल्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी है, माइनस का 300, और दूसरी जो चीज है हमारे पास T, वो 0.05 का होल स्क्वायर। सब चीजें करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, S इक्वल टू 0.375 मीटर। अब हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट मालूम करने के लिए कह रहा है वो है न्यूटन, फोर्स मालूम करने के लिए कह रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज F इक्वल टू ma, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास -15 न्यूटन आएगा। ओके, जैसा कि आपको डेटा में गिवन जो चीज है उससे मालूम हो गया होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला हम कौन सा रखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। ओके, जो हमने लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कस किया था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मीन्स दोनों बराबर होती हैं ये चीजें। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सारी वैल्यूज को ध्यान से रखिएगा कि कौन सी चीज क्या बताई है मैंने। ठीक है, उसी हिसाब से अगर m1 लिखा हुआ है तो u1 जाएगा, अगर m2 लिखा है तो u2 जाएगा। सेम एज इट इज, अगर m1 की बात कर रहे हैं तो v1 जाएगा, और m2 की बात कर रहे हैं तो v2 की वैल्यू पुट होगी। ठीक है, इसके बाद सारा करने के बाद हमारे पास जो आखिर में आंसर आएगा वो v1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। नाउ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है यहाँ पे कि जब आपका रिकॉइल ऑफ अ गन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, आपने अगर कभी फायर होते हुए देखा हो या किया हो, कभी किसी ने देखा हो सामने से, तो आपको पता चलेगा कि जो खाली होल है वो हमेशा पीछे की तरफ आता है। यही साइन ये इंडिकेट्स कर रहा है कि आपका जो रिकॉइल है, मतलब आपका जो फायर होने के बाद जो खाली होल है वो आपका इन अपोजिट डायरेक्शन जाता है। मींस आपकी गोली तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन उसका जो खाली होल है वो हमेशा पीछे की तरफ आता है। इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है हमारे पास वो नेगेटिव में आई है। ओके, नाउ 4.7 में आपके पास क्या दे रखा है, टू बॉडीज हैं आपके पास A एंड B अटैच्ड विद द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली so that they hang vertically. If the mass of a body B is 4 kg and find the mass of a body A which move up with an acceleration of 0.5 meter per second square. ठीक है, यहाँ पे जो G की वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना इसके डेटा में इस बात समझ लीजिए, 4.7 डेटा है आपका, मास ऑफ अ बॉडी B क्या दे रखा है, 4 kg m1,
एक्सेलरेशन उसी के रिस्पेक्ट से क्या दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ अ बॉडी ए वो आपसे मालूम करने के लिए कह रहा है m2। ओके, नाउ जो हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग में हमारे पास केस नंबर 1 था, उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि आपकी जो दोनों बॉडीज है वो वर्टिकली डाउनवर्ड थी। इसमें से ये वाली जो एक्सेलरेशन निकाला था हमने, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। A इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। जो जो वैल्यूज आपके पास पुट है, आप उनको पुट करने के बाद आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। 0.5 इक्वल्स टू m1 आपके पास 4 है, m2 आपको मालूम करने के लिए कह रहा है, डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू रखी लेकिन m2 की वैल्यू आपको मालूम करने के लिए कह रहा है, इंटू जी आपको डेटा में गिवन है 10। सब चीजें करने के बाद ये आप करेंगे 0.5, यहाँ से जब 10 यहाँ पे मल्टीप्लायर हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस m2। अब ये दोनों चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, ये भी आपस में डिवाइड हो रही है, तो 10 को मैंने यहाँ ट्रांसफर करूंगी और 4 प्लस m2 को यहाँ ट्रांसफर करूंगी, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी। ये करने के बाद हम इसमें से m2 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ, ताकि हमारे पास m2 कॉमन में निकल आए। m2 को कॉमन में निकाला, 38 डिवाइडेड बाय 10.5, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा m2 इक्वल्स टू 3.61 kg, ये हमारे पास आंसर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स को स्केप किया है। कौन कौन से, 4.6 और 4.8 को। क्यों किया है, ताकि ये आप खुद से करके देखें कि आप कहाँ पे क्या चीज गलत नोट डाउन कर रहे हैं। अगर आपने सही किया न्यूमेरिकल्स तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती करी है तो फिर आप पिक्स में से देख के, जो मैं आपको दूंगी उसमें से देख के आप अपनी गलती को नोट डाउन करेंगे और फिर सोल्यूशन करेंगे। ओके, दोबारा बता रही हूँ कि 4.6 और 4.8 मैंने स्केप किया है। आप खुद करेंगे और अपनी गलती को रिमूव करेंगे मेरी पिक्स देख के, जो मैं व्हाट्सएप पे आपको दूंगी, ठीक है बच्चों। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी ईद के बाद, तो एंजॉय योर ईद। अल्लाह हाफिज।